Thank you. So, welcome to all the dignitaries and the participants. I, CA Aman Shah, Haldwani branch of CIRC of ICAI, immediate past chairman, on behalf of the Professional Skills and Enrichment Committee, ICAI, welcome all the participants in the today's webcast on emotional intelligence skill, regulate stress and anxiety. I also welcome to CA Dr. Anuj Goyal, Chairman, Professional Skills Enrichment Committee, ICAI, CA Shripriya Kumar, Vice Chairperson, Professional Skills Enrichment Committee, ICAI. Our today's resource person, Ms. Namita Tibrewal, and the event enabler from the Haldwani branch of CIRC of ICAI and others present over here. I would like to introduce Chairman of Professional Skills Enrichment Committee, CA Dr. Anuj Goyal. He is a Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India, qualified FCA, FCS, CMA, MCOM, LLB, PhD, DISA, DIRM, and many more degrees he is a holder. Besides that, he is a six-time Central Council member ICI since 2004. Chairman, Professional Skills Enrichment Committee ICI, Chairman, Ethical Standards Board ICI, Convener and Publications and CDS Directorate ICI, Vice Chairman Sustainability Reporting Standard Board, Vice Chairman Taxation Audits Quality Review Board, and member of various non-standing committee of ICAI. He is a dynamic Central Council member who always with the prime objective to serve the members of ICAI at large and always stands with and for the members of ICAI. He had earlier served as a chairman of CIRC of ICAI and in other position of CIRC of ICAI and the managing committee in the Ghaziabad branch of CIRC of ICAI before joining the ICAI Council. Thank you, sir, and we are most welcome you, sir. So now, Thank you very much. Thank you very much, CA Aman Shah, sir, our very prominent leader of the profession, our immediate past chairman of very prominent Haldwani branch of Devbhoomi, Uttarakhand, and we are having the chance of our very resource person, Namita Tibrewal, ma'am, and of course Dr. Sambit Kumar Mishra, sir, our honorable founder, secretary of this Professional Skill Enrichment Committee, and all the viewers from each and every part of the. I'm really very happy that we are having this very prominent webcast today. And today we are having this very important webinar on very prominent topic, I will say, emotional intelligence skills, regulate stress and anxiety. I think it is very important for the members of the Institute of Chartered Accountants of India. And in today's life, it's very difficult to regulate stress and anxiety. And emotional intelligence skills is very important. And we are having the best of the resource person, Namita Tibrewal ji. And through this Professional Skill Enrichment Committee, we are trying our level best to see that how we can really do something very concrete with the help and support of best of resource persons. And I am quite confident that under the very able leadership, I will say, of Namita Tibrewal ji, we will be getting the best of the knowledge of this very important topic. Over to Namita Tibrewal ji. So, before moving ahead to our learned speaker, I would like to introduce Namita Tibrewal ji. She is a seasoned coach with extensive expertise in the emotional freedom techniques, metrics, and hypotherapy. She is also a certified NLP and breakthrough coach and a dynamic motivational speaker. Namita holds advanced certification in EFT from the renowned Carl Dawson EFT and Metrics Academy and is a certified Heal Your Life workshop leader inspired by the philosophy of Louise Hay. Her diverse
Qualification includes certification in psychology, nutrition, Ayurveda, and more, reflecting her holistic approach to wellness. With a rich background in conducting workshops and seminars, Namita had a various topics including mental health, fitness, emotional wellness, and stress management, catering to audience from a corporate professionals. More than 11 years ago, she followed her passion to create her venture, and since then, her mission has been to empower individuals to change their lifestyle more balanced life through a combination of proven techniques and compassionate coaching. We welcome you, ma'am. Over to you. Thank you, CA Aman Shah, for the lovely introduction. Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank ICI Professional Skill Enrichment Committee and its chairperson, Dr. CA Anuj Goyal, and vice chairperson, CA Shri Priya Kumar, for the opportunity. It's an absolute pleasure and honor, sir, to be here on this platform and share my experience, my knowledge with you. This topic is very close to my heart, and without any further delay, I would like to begin. So, shall I? Sure. Okay. So, stress. I think this has become a buzzword these days. हर जगह हम स्ट्रेस सुनने के लिए आता है, हमें सुनने के लिए आता है. आप चाहे स्टूडेंट से बात कर लीजिए, आप चाहे हाउस वाइफ से बात कर लीजिए. It is at the workplace. It is like if you talk to teachers, it is at the school. Everywhere we are either talking about stress or listening about stress. ऐसा भी नहीं है कि there is no social awareness on stress. We know that how to regulate stress, what we need to do to deal with the stress. We know that we should do meditation. We know that we should be doing yoga. We should be watching our diet. We should be staying well hydrated. Then what could be the reason that stress is significantly increasing, not only in India, but across the globe? The reason could be that we are not able to understand stress properly, how it impacts our body, how it impacts our mind. And today's session is all about understanding stress, stress response, how much an impact it has on our body, and how having emotional intelligence can help us not only reduce stress, but regulate our emotions in a better way. My first question is, what is stress? Stress is our body's physical response to any threat, challenge, or danger. Now, let us understand how stress and stress response works with an example. Suppose you are sitting in a room, comfortable, calm, and reading a book. And suddenly, a stray dog comes in front of you. It looks quite aggressive, ready to attack you. Within a fraction of a second, from being calm and relaxed, you become tensed, stressed, ready to fight or run away from that situation. You feel that energetic. Have you ever thought what causes that change in physiology in fraction of second? It is the stress and stress response. When you see the dog, you feel scared, stressed. जब हम stressed feel करते हैं, there are certain stress hormones that are released in our body, such as cortisol, adrenaline, which activates the fight or flight mode in our body. अब जब fight or flight mode activate होता है, तो क्या होता है हमारी body में? Your heartbeat increases. Your blood is being circulated
towards your muscles to give you power to fight with the danger or to run away from the situation. You become more focused, you become more alert. अब एक बार आप सोच के देखिए, if this stress response mechanism would not be there in our body, would we be able to change our physiology and survive the dog attack? No. दूसरा एक हम एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, आपकी फ्लाइट है, एंड यू आर getting late at your work, you're not able to get out from your workplace. Okay, मीटिंग के बाद में मीटिंग है, you obviously you're getting delayed for your flight, airport, and you are feeling stressed. आप देखेंगे you are able to speed up because you are feeling anxious, because you are feeling stressed. You are more focused, you are able to prioritize tasks, and you are able to speed up, rush to the airport and catch the flight. अगर ये एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होता तो आप ना तो रश कर पाते, ना प्रायोरिटाइज कर पाते, ना फोकस कर पाते. एक और एग्जांपल हम लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए. यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली फॉर देयर एग्जाम, they are not able to focus or concentrate. पूरा दिन निकल जाता है एक क्वेश्चन मेमोराइज करने में. दे आर डे ड्रीमिंग, बहुत सारे टाइम आउट्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास में आती है, दे आर एबल टू फोकस, दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट. जो क्वेश्चन शायद लर्न करने में पूरा दिन लगता था, दे आर एबल टू लर्न दैट विद इन 10 minutes. क्या होता है? बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस एंड एंजाइटी आपका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है. यू आर मोर अटेंटिव, आप फोकस कर पा रहे हैं, सारी चीजों पे ध्यान दे पा रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन यू आर एबल टू मेमोराइज दैट. अब जब ये एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तब तो लगता है स्ट्रेस इज अ ब्लेसिंग. ये तो हमारे सर्वाइवल के लिए इट इज मोस्ट रिक्वायर्ड, इट इज एसेंशियल एंड इट इज रिक्वायर्ड. Then why stress has earned such a bad name? Stress has earned such a bad name because our body and mind cannot differentiate between actual threat or stress, or the stress that is being created by our thoughts or emotions. That is emotional stress. अब ये इमोशनल स्ट्रेस क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड विथ अनदर एग्जाम्पल. समझ लीजिए there is a person who is at his workplace, okay, and he needs to give a presentation just like me, and suddenly he's getting thoughts, what if my presentation doesn't go well? What if I forget certain points in between the presentation? What if my client is not convinced? What if my boss or manager doesn't like the presentation? What if the outcome is not positive? Obviously, he'll start feeling nervous and stressed. और जब वो नर्वस एंड स्ट्रेस्ड फील करना शुरू करते हैं, सेम फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है उनकी बॉडी में. स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड होता क्या है ये जो फाइट और फ्लाइट मोड हम बार बार बात कर रहे हैं. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एंड व्हाई वी शुड नो अबाउट दिस. हम ऑलरेडी जानते हैं when fight and flight mode is activated, your body is preparing you to deal with the danger or threat or challenge. आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है मसल्स की तरफ में है. आपकी बॉडी में जिस समय ये फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है,
बाकी की सारी important biological activities are compromised at that point of time. Neither your digestion is happening properly, nor absorption, elimination, repair, कुछ भी सही तरीके से नहीं हो रहा है. Why? Because there is not enough blood left to carry out these activities properly. Your blood is being circulated towards your muscles to prepare you to deal with the challenge, to fight or run away from the situation. लेकिन अब बॉडी और ब्रेन को ये कौन बताए कि ये जो थ्रेट है, ये जो स्ट्रेस है, इट इज बीइंग क्रिएटेड बाय माय थॉट्स. देयर इज नो एक्चुअल डेंजर. देयर इज, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है, मुझे कहीं नहीं भागना, इट्स जस्ट हैपनिंग इन माय हेड. लेकिन ये सिर्फ आपके हेड में नहीं होता है, इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी एज वेल. ओके, अब चलिए थोड़ा और, यही इंसान जिनकी प्रेजेंटेशन थी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Towards the lunch time, he has an argument with his colleague. Okay, and he is angry, he is mad, he is stressed. होगा क्या उस टाइम भी? यही सेम फाइट और फ्लाइट मोड इनका एक्टिवेट होगा. और आपको पता है कि अगर ये हुआ तो बॉडी पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा. Let's move forward. In the evening, he comes back home only to discover that his son has failed in the half-yearly exam. He becomes frustrated, he becomes mad, angry, सारे emotions जग जाते हैं. Maybe he would lash out. लेकिन यहाँ भी, when he is reacting this way, same thing is happening. The fight and flight mode is getting activated. रात के समय पे डिनर टेबल पे he has an argument with his wife, okay, and he is mad again. Same thing, same response, same fight and flight mode is being activated. अब आप खुद सोच के देखिए, आर वी इवन अवेयर पूरे दिन भर में अगर ये चीजें, या हम इतने इतने सारे इमोशंस से डील कर रहे हैं और हमारा फाइट और फ्लाइट मूड एक्टिवेटेड रहता है, हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज किस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड रहती हैं. दैट इज द रीजन स्ट्रेस लीड्स टू वीक इम्यूनिटी. आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है एंड योर बॉडी टर्न्स इनटू ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वेरियस डिजीजेस. आपको मसल पेन शुरू होता है, और क्यों ना हो, अगर हर समय आपके मसल्स टेंस्ड रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, it's quite obvious that we will over the period, over the time, end up developing muscle pain. You end up getting cardiovascular disease. मैंने जैसे बताया, जब आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है. There's lot of pressure that is being created on your heart. आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है. यू एंड अप हैविंग लॉट ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज. यू एंड अप डेवलपिंग हाई बीपी, डायबिटीज. और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में. मैं अच्छा खा रहा हूँ, मैं हेल्दी खा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है. वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस. जब ये तो फिजिकल बात हो गई कि फिजिकल जो डिजीज होती है उसकी बात है. अब आप, उसके पहले मैं आपको एक और, ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं. अगर आपके आसपास में किसी को भी आप जानते हैं जी हु हैज लो इम्यूनिटी, ओके, और बहुत जल्दी जल्दी वो बीमार पड़ते हैं, एक बार आप उनका इमोशनल स्टेट, उनका इमोशनल हेल्थ चेक कीजिएगा. हाउ
is he doing emotionally? How is he able to regulate his emotions? अगर किसी को डायबिटीज, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शुगर खाने से होता है, बहुत मीठा खाने से होता है. That is a contributing factor, but main factor is stress. And stress, फिजिकल स्ट्रेस कम है, इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा है. सो ये आप जरूर एक बार चेक कीजिएगा, जो भी आपके आसपास लोग हैं. एक चीज और, अगर आप किसी भी कैंसर पेशेंट को जानते हैं, भगवान न करे अगर कोई भी आपके जान पहचान में है जिनको ये बीमारी है, एक बार आप उनसे बात करके देखिएगा या उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा कि हाउ हैज बीन हिज लाइफ, हाउ ही वाज डूइंग, हाउ ही वाज रेगुलेटिंग हिज इमोशंस. आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. व्हाट कुड बी द रीजन, राइट? मूविंग अहेड, इफ द स्ट्रेस goes unchecked, unmonitored for a long period of time, this turns into anxiety and depression. जब एंजाइटी या डिप्रेशन आपको होता है, अब आपको किसी बहाने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, या मेरी वाइफ के साथ में मेरा झगड़ा हुआ है, या मेरे बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है. फॉर यू डोंट, दीज आर ऑल स्ट्रेसेस. स्ट्रेसेस क्या होते हैं? विच ट्रिगर्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन यू. ओके, अब आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं है. फॉर नो रीजन यू वुड बी फीलिंग लो. आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा. यू विल फील लो, डीमोटिवेटेड, डिस्करेज्ड. लाइफ लगेगा जैसे पता नहीं कुछ भी लाइफ के अंदर अच्छा बचा नहीं है, जबकि सब कुछ सही रहेगा. बट दिस इज एन इनर फीलिंग कि कुछ भी अच्छा नहीं है. डिप्रेशन एंड एंजाइटी ऑल्सो लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर. आप बहुत स्नैपी हो जाते हैं. यू बिकम वेरी इरिटेबल. बात बात पे आपको गुस्सा आता है. एंड सिर्फ आपकी लाइफ इससे इम्पैक्ट नहीं होती है, जो आपके घर में लोग हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू एट योर वर्क प्लेस एज वेल. यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग थ्रू आउट द डे एंड एवरी डे. अब होता क्या है कि वर्क प्लेस पे यू विल नॉट बी एबल टू वेंट योर फ्रस्ट्रेशन, योर एंगर. लेकिन घर पे जब आप आते हैं तो वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन आपकी या तो बच्चों पे निकलती है, या आपकी वाइफ के ऊपर निकलती है, या आपका फैमिली का पूरा जो एनवायरनमेंट होता है वो पूरा खराब हो जाता है. हो सकता है यू माइट बी हैविंग ग्रोइंग किड्स, यू नो, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है ये वाला, द टीनेज ईयर्स, ग्रोइंग ईयर्स. क्योंकि दीज डेज स्कूल में भी दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, और घर में भी जब इतना नेगेटिव माहौल आपका रहता है, लाइफ बिकम्स चैलेंजिंग फॉर देम एज वेल. अब आप ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करते हैं इस चीज से डील करने की, लेकिन शायद आपको पता नहीं होता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या ऐसा करना चाहिए. यू स्टार्ट डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ, क्योंकि फीलिंग्स इतनी ओवरवेलमिंग होती है. यू फील सो सफोकेटेड, सो ट्रैप्ड. यू वांट टू गेट रिड ऑफ दोज फीलिंग्स, बट यू डोंट नो. पहली बात तो हो किस लिए रहा है आपको ये भी नहीं पता होता है, तो आप मैनेज करेंगे कैसे? सो यू स्टार्ट डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ. कैसे आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं? यू स्टार्ट टर्निंग टू फूड. फूड एडिक्शन. आप बहुत बार देखेंगे जब आपका स्ट्रेसफुल पीरियड निकलता है, आपने देखा होगा वेट आपका गेन हो जाता है उस टाइम पे. दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपका वेट गेन हो जाएगा, या यू वुड एंड अप लूजिंग एपेटाइट. दोनों ही केस आपके में आपकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है. या फिर आप एडिक्शंस लाइक सिगरेट या अल्कोहल, यू टर्न टू दोज थिंग्स. But we don't understand that these are merely distractions. Those are not fixing the root cause. तीसरी चौथी चीज होती है टर्निंग टू सोशल मीडिया.
आप अपने इमोशंस को फील ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इट इज सो ओवरवेलमिंग। आप बस चाहते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूं, मेरा ध्यान नहीं जाए किसी भी चीज के ऊपर में। यू टर्न टू सोशल मीडिया एंड एंड अप फीलिंग इवन वर्स्ट, क्योंकि सोशल मीडिया पे यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर लाइफ टू द सीमिंगली परफेक्ट लाइफ ऑफ पीपल। आप उनकी अचीवमेंट्स देखते हैं, वहां पे उनकी वेकेशन की फोटोग्राफ्स देखते हैं, आपके अंदर में फीलिंग आती है कि लाइफ तो सिर्फ यही जी रहे हैं और सबसे खराब लाइफ मेरी ही है, कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है। यू एंड अप फीलिंग इवन वर्स्ट। इस टाइम पे आपके मन में ख्याल आता है कि लेट्स कंसल्ट द डॉक्टर। ओके, आप जाते हैं डॉक्टर के पास में। डॉक्टर आपको या तो एंटी एंजाइटी पिल्स दे देंगे या एंटी डिप्रेसेंट पिल्स दे देंगे। लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए, मान लीजिए आपके हाथ पे एक वुंड हुआ, ठीक है, डॉक्टर ने आपको ऑइंटमेंट दी लगाने के लिए। आप उस पे ऑइंटमेंट लगा तो रहे हैं, लेकिन उसको हर दिन आप प्रिक कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर की कोई गलती है? अगर आप उसको एवरी डे प्रिक करेंगे, हाउ वुड दैट वुंड हील? इट्स नॉट पॉसिबल। सेम चीज एंजाइटी एंड डिप्रेशन के साथ होती है। यू आर ऑन एंटी एंजाइटी पिल्स, यू आर ऑन एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, बट इफ यू आर नॉट रेगुलेटिंग योर इमोशंस, तो बात तो वही है ना कि हम ऊपर से पानी भर रहे हैं लेकिन नीचे से नल खुला है, तो क्या ही हम उसके अंदर में कर सकते हैं। फिर आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी सही नहीं लग रहा, बहुत दवाइयां भी ले रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं कर। तब आपके फ्रेंड्स आपको शायद सजेस्ट करेंगे, लिसन, यू हिट द जिम, जिम करो, क्लीन डाइट खाओ, सब कुछ ठीक लगेगा, योगा करो, मेडिटेशन करो, सब कुछ ठीक लगेगा। और ये ट्रस्ट मी, बिल्कुल इससे अच्छी एडवाइस आपको कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट यू आर सो ड्रेन्ड, यू आर सो एग्जॉस्टेड। आपको पता है मुझे ये करना है, लेकिन आपसे नहीं हो पाता है, आप नहीं कर पाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों में से कोई भी यहाँ पे है जो कि योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्लीन डाइट खाते हैं, दोज हु आर मॉनिटरिंग देयर डाइट, एक्सरसाइजिंग, दोज हु हैव प्रायोरिटाइज्ड देयर हेल्थ, ट्रस्ट मी, यू हैव गिवन योरसेल्फ द बेस्ट गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ हेल्थ। अपने आप को भी आपने ये गिफ्ट दिया है और अपनी फैमिली को भी दिया है। अब आते हैं वापस की एडवाइस पे कि योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन थिंग इज दैट कि यू आर ट्रैप्ड इन दैट फीलिंग। नहीं हो पाता आपसे, आप नहीं कर पाते, आपको पता है मुझे करना है, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा होता है विच स्टॉप्स यू, और आप नहीं कर पाते हैं। और सबसे वर्स्ट चीज होती है, eventually the stress and anxiety starts impacting your sleep as well। आप रात को सो भी नहीं पाते हैं, अगर सोते भी हैं तो इट इज नॉट अ साउंड स्लीप। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो यू आर ऑलरेडी टायर्ड, एग्जॉस्टेड। ये टाइम होता है जब आपको नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। एक मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, अगर सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और इससे हम अपना इमोशंस अगर हम अच्छे से रेगुलेट कर पाते, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं दे हैव गॉट द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट डाइटिशियंस, बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट, ओके, बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। देन व्हाट इज द रीजन कि हम वहां पे इतने आए दिन डिप्रेशन के, सुइसाइड के, कैंसर के इतने केसेस हम आए दिन सुनते आ रहे हैं? बिकॉज दे आर हैविंग क्रॉनिक स्ट्रेस। इतनी ऐसी इंडस्ट्री है ये वाली विच इज लाइक
which drains you out mentally. इसलिए in this session today, I would like to teach you few tools and techniques. छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनके लिए. मैं फिर से बोलती हूँ, जो कर रहे हैं अभी उससे अच्छा, जो योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो आप अप्लाई कीजिए. थोड़ा अपनी लाइफ को कंट्रोल में लीजिए एंड देन बिल्ड फ्रॉम देयर. देन यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग. आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्टार्ट वॉचिंग योर डाइट, एक्सरसाइज, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, यू विल डेफिनेटली सी सम चेंज इन योरसेल्फ. ओके, सो दिस इज वेयर हैविंग awareness about emotional intelligence can help you to great extent in reducing your stress. मैं नहीं बोलती हूँ कि eliminate your stress completely. Stress is a blessing, जो हमने शुरू में ही देखा है. हमको stress चाहिए, stress response चाहिए. लेकिन ये जो stress, जो हमारे emotions, हमारी thoughts की वजह से create होता है, this we definitely can regulate, reduce with emotional intelligence. So the first tool is stop operating on an autopilot mode. ओके, जब मैं ये बात बोलती हूँ कि आप ऑटो पायलट मोड पे नहीं ऑपरेट कीजिए, इसका मतलब होता है स्टार्ट बिकमिंग सेल्फ अवेयर. करना क्या है आपको? इन द मॉर्निंग, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, व्हाट ऑल यू कैन डू इन द मॉर्निंग. द मोमेंट यू ओपन योर आईज, you are still in the bed and you are not feeling like doing anything. मुझे पता है मुझे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, सेशन चल रहा है, मैं मुझे सिर्फ नीचे जाके ज्वाइन करना है, नहीं हो पा रहा. ठीक है, कोई बात नहीं है. आप फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए. जस्ट स्कैन योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. ओके, और सिर्फ ये देखिए कि आपकी बॉडी में टॉप से लेके बॉटम तक आर यू फीलिंग एनी टेंशन? कहीं कोई टाइटनेस आपको नजर आ रही है? हो सकता है फर्स्ट डे आपको कुछ भी ना समझ में आए. धीरे धीरे द मोर यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर बॉडी, आपको समझ में आएगा कि बॉडी में किस तरह की टेंशन होती है. क्योंकि हम ऑटो पायलट मोड पे हैं, हमको ये दिमाग में भी नहीं आता कि बॉडीली सेंसेशन होती क्या है. स्टार्ट कनेक्टिंग टू दैट सेंसेशन. वंस यू आर एबल टू सी कि मुझे शोल्डर में कुछ टाइटनेस लग रही है, या मुझे नेक में लग रही है, या थाइस में लग रही है, या पेट में है, bring your awareness there and ask yourself, what is it? Why this tightness is there? What emotion is trapped there? आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये मैं पूछूंगा तो मुझे क्या कोई बॉडी जवाब देगी? नहीं, जरूरत है. The every single day when you are doing this, you are getting connected to your emotions and your bodily sensations. ये सबसे पहला स्टेप है. सुबह मॉर्निंग में सिर्फ आपको ये करना है. Once you are able to identify, this is worry, this could be fear, this could be anger, उस बॉडी पार्ट पे हाथ रखिए and tell yourself, I'm choosing to release this tension now in this very moment. अब जब आप ये चीज करेंगे, सिर्फ गहरी सांस लेनी है, उस पार्ट पे हाथ रखना है, एक्सलेशन के साथ में आई एम चूजिंग टू रिलीज दिस टेंशन एंड दिस इमोशन राइट इन दिस मोमेंट. आपको शायद ये लग रहा होगा कि ऐसे थोड़ी ना इमोशंस ट्रैप्ड होते हैं बॉडी के अंदर में. ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा ये टॉपिक है कि हाउ इमोशंस गेट ट्रैप्ड इन योर बॉडी एंड हाउ इट बिकम्स मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल डिजीज. ये
इतना बड़ा टॉपिक है which I'll not be able to cover today, but इमोशंस आपकी बॉडी में ट्रैप होते हैं। तो सबसे पहली स्टेप आपको ये करनी है, स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर बॉडी, कनेक्टिंग टू बॉडीली सेंसेशन एंड अंडरस्टैंडिंग योर इमोशन, व्हाट इमोशन दिस कुड बी। ये आपने सिर्फ मॉर्निंग में किया, आपको बाहर भी नहीं निकलना है, आंखें आपकी बंद हैं, बंद रखे हुए सिर्फ आपको बॉडी स्कैन करना है। उसके बाद में आपको जो करना है, सेट 3 हेल्थ चेक रिमाइंडर्स। आप इसी नाम से सेव कर लीजिए दैट दीज आर माय हेल्थ चेक रिमाइंडर या माइंड बॉडी रिमाइंडर्स। आपको ये तीनों इस नाम से आप सेव कर सकते हैं। एक रिमाइंडर आप 9 बजे के आसपास का लगाइए, एक रिमाइंडर आप लगाइए 3-3:30 बजे के आसपास का, और एक लगाइए आप 8 बजे के आसपास का। करना क्या है आपको, जिस वक्त आपका ये रिमाइंडर बजे, ठीक है, अगर तो आप फ्री हैं उस टाइम पे, आपको सिर्फ ये देखना है, व्हाट एम आई थिंकिंग, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरी सोच क्या है, थॉट क्या है, एंड व्हाट इमोशन आई एम फीलिंग राइट नाउ। आपको सिर्फ अपनी थॉट समझनी है और अपना इमोशन समझना है। मान लीजिए सुबह सुबह आपको ख्याल आया, कल मेरा जिससे झगड़ा हुआ था कलीग के साथ में, पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया, क्या समझता है अपने आप को, ही इज दिस, ही इज दैट, एंड यू वुड सी योर मसल्स आर टेंस्ड। ओके, करना क्या है आपको, choosing to relax now, choosing to release this anger। ब्रेन बोलेगा इतना, इट्स नॉट दैट सिंपल। उस टाइम अपने ब्रेन को याद दिलाइए, व्हाट इज द कॉस्ट एम आई पेइंग फॉर दिस। मेरा स्ट्रेस मैकेनिज्म एक्टिवेटेड है, फाइट एंड फ्लाइट मोड मेरा एक्टिवेट हो रहा है, किसके लिए, कल जो मेरा झगड़ा हुआ था उस चीज को मैं सिर्फ अभी सोच रहा हूं उस वजह से, एंड द कॉस्ट दैट आई एम पेइंग फॉर इज माई हेल्थ। आई एम चूजिंग टू रिलीज इट नाउ। ये हेल्थ चेक रिमाइंडर आपको सुबह लगाना है, दोपहर में लगाना है और रात को लगाना है। कभी कभी हो सकता है कि आप मीटिंग में बिजी रहेंगे, लेकिन पता क्या होगा, जब आपका ये रिमाइंडर बजेगा ना, ओवर द पीरियड आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये ऑटो पायलट मोड बन जाएगा कि आप तुरंत सोचेंगे, व्हाट एम आई थिंकिंग, मेरी बॉडी की सेंसेशन क्या है, एम आई रिलैक्स्ड, एम आई स्ट्रेस्ड। ये होती है, यू गेट इमोशनल अवेयरनेस, गेटिंग अवेयर ऑफ योर इमोशन एंड बॉडीली टेंशन। अभी मैं एक स्क्रीन पे देख पा रही हूँ कि somebody इज ड्राइविंग। ओके, मान लीजिए आपका अलार्म बजा तुरंत से, ठीक है, तो अभी जब आप ऑब्वियसली ड्राइव कर रहे हैं तो आपके दिमाग में 50 थॉट्स चल रहे होंगे, आपको पता भी नहीं है कि किस तरह के थॉट चल रहे हैं और आपकी बॉडीली सेंसेशन क्या है। जैसे ही अलार्म बजेगा, तुरंत आपके दिमाग में थॉट आएगा कि क्या मैं सोच रहा था और मेरी बॉडी में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि हम छोड़ देते, क्या है, सोच ही तो रहा हूं ना। आप सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर में पड़ रहा है। इट्स हाई टाइम you become aware of your emotions and bodily sensations. Okay, so this is the second thing that you can do, setting 3 health check or mind body check reminders for yourself, which will help you connect with your emotions, understand your emotions and bodily sensation. Third thing है, you can, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप कितना भी अपने आप को बोले कि अरे व्हाट इज द कॉस्ट आई एम पेइंग, ये वो ब्रेन नहीं सुनेगा आपका। तो इसलिए बहुत सारे आपके पास में टूल्स होने चाहिए टू डील विथ दिस स्टबर्न ब्रेन। ओके, तीसरी चीज आप जो कर सकते हैं इज, व्हेन यू आर रियली स्ट्रेस्ड, लाइक आप चाह रहे हैं कि आप नहीं सोचें उस चीज के बारे में, लेकिन आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, draw a circle of control. This is how you can
ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कंट्रोल और उसके सेंटर में लिखिए आप द थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल एंड द थिंग्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल. हाउ डज दैट हेल्प? देखिए, स्ट्रेस सबसे ज्यादा क्या होता है, हम चैनलाइज अपनी एनर्जी उस चीज पे नहीं करते हैं जो हमारे हाथ में है. वी स्टे वरीड अबाउट द थिंग्स दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, राइट? एंड दैट कॉजेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी. तो जब व्हेन यू ब्रिंग इट ऑन पेपर, ओके, let me draw a circle. What are the things that I can control? What are the things that I cannot control? Let's go back to that example of workplace जहाँ पे that person was getting worried about the presentation. What would be the outcome? What if I forget points and all that? Let's take that example. क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर में? He can control his presentation. He can control his preparation. Things that he cannot control is what would be the opinion of his manager. उनके client convinced होंगे कि नहीं होंगे? What would be the outcome? What he can do is putting in the best. That is in his control. आप उस moment में, when you will tell yourself, okay, I am choosing to channelize my energy in the direction that I have some control over. आप आधी से ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस अवॉइड कर पाएंगे. लेकिन मैं आपको फिर बोलती हूँ, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अ डे. आप कोशिश कीजिए, टूल्स आपके पास हैं, प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर एफिशिएंट यू बिकम. रीजन फिर रिमाइंड करवाइए अपने आप को, क्योंकि ये जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, ये एंजाइटी क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स. इट इज कॉस्टिंग मी माई हेल्थ, not worth it. Okay, let's move to the next tool. चलिए, ये भी किसी दिन होता है कि हम इससे भी नहीं काम चला पा रहे हैं. The next one is box breathing. Box breathing exercise is great to reduce your anxiety, to calm you down, to break the chain of thoughts. इसको बॉक्स ब्रीदिंग क्यों बोला जाता है? दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके, एंड इसको बॉक्स ब्रीदिंग इसलिए बोला जाता है बिकॉज देर आर 4 स्टेप्स. हम अभी करके देखेंगे ये कैसे होता है. बिकॉज देर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व एंड दैट बिकम्स अ box kind of. That's the reason we call it box breathing. There comes an app. You go to your Play Store and you can get it downloaded from there and you can start practicing it. Box breathing में क्या करना होता है आपको? It is a breathing exercise where you exhale first for 4 seconds. Hold your breath for 4 seconds and then inhale for 4 seconds and then exhale. Inhale for 4 seconds and then hold for 4 seconds. This becomes a complete box. आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो सामने आपका ऐप चल रहा होगा और आपको सिर्फ उस ऐप को देख के एक्सलेशन करना है, होल्ड करना है, इनहेलेशन करना है और होल्ड करना है. अभी हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं बॉक्स ब्रीथिंग और फिर देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू. रिलैक्स वेरेवर यू आर सिटिंग. ओके, क्लोज योर आईज. कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है वो हमेशा आप एक्सलेशन से शुरू कीजिए. इसको अंतर्बाह्य कुंभक भी बोलते हैं. अगर आप योगा, अगर मेडिटेशन, आप प्राणायाम करते हैं तो यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस. ओके, सो एक्सेल फर्स्ट. यू कैन क्लोज योर आईज. Exhale, I'll give you the count. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Inhale.
1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. फिर से इनहेल कीजिए, सॉरी एक्सेल कीजिए. 1, 2, 3, 4. पॉज और होल्ड. 1, 2, 3, 4. इनहेल. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Relax. You can open your eyes. How this helps you in breaking your chain of thoughts. जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखिए, जब नॉर्मली हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो समटाइम्स फिर भी हमारा जो दिमाग होता है ना, वो नहीं फोकस कर पाता ब्रेथ के, स्पेशली इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट. मैं उनकी बात कर रही हूँ, दोज हु स्ट्रगल, राइट. तो क्या होता है, हम जैसे ही आंख बंद करते हैं दिमाग में 50 थॉट्स चलने लग जाते हैं. हम मैकेनिकली हम कर रहे होते हैं, अच्छा इनहेल करना है, एक्सेल करना है. जब ये सामने आपका ऐप चल रहा होता है, यू नीड टू एक्सेल. आप उस ऐप को देख रहे होते हैं कि मुझे 4 सेकंड तक एक्सेल करना है और फिर 4 सेकंड तक होल्ड करना है. तो आपका जो पूरा ध्यान है इसके ऊपर में केंद्रित हो जाता है. इट इज फोकस्ड, इट इज सेंटर्ड ऑन योर काउंट्स, ऑन योर इनहेलेशन एंड योर एक्सलेशन. That helps you break the chain of thoughts or the emotions that is haunting you. धीरे धीरे आप इसका टाइमिंग इंक्रीज कर सकते हैं. यू कैन मेक इट टू 7 seconds, यू कैन मेक इट टू 10 seconds. लोग 21 seconds तक भी करते हैं, बट आई वुडंट रिकमेंड यू. धीरे धीरे कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ऑन अ डेली बेसिस, एंड यू विल सी दैट इट इज रियली हेल्पफुल. एंड स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए तो बहुत ईजी है. आपको सिर्फ अपनी चेयर पे बैठ के ये चीज करनी है. एंड देखिए, ब्रीदिंग जब आप एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, यू स्टार्ट ब्रीदिंग शैलो. आपकी ब्रेथ बहुत शैलो हो जाती है. और जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आपका सर्कुलेशन बेटर होता है, विच लीड्स टू मसल रिलैक्सेशन एंड यू फील काम, सेंटर्ड एंड फोकस्ड, राइट. तो ये वाली जो एक्सरसाइज है बॉक्स ब्रीदिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन गेट द ऐप डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस. सेकेंड वन इज, ये मेरा फेवरेट है एकदम, सेल्फ अपलिफ्टिंग स्टेटमेंट्स. सुबह जब आप नहा के निकलते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर आप बोलते, अपने आप को देखते हैं. सिर्फ 4-5 चीजें अपने लिए बोलिए. यू आर अमेजिंग. नहीं मन करेगा बोलने का क्योंकि इतना गुस्सा आ रहा है आपको अपने ऊपर में, लेकिन फिर भी बोलिए, यू आर अमेजिंग, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब. दिमाग के अंदर से आवाज आएगी कि क्या वंडरफुल जॉब, कुछ भी तो सही नहीं है, फिर भी बोलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो. आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब. ये सारी चीजें आप अपने आप को ऑन अ डेली बेसिस बोलिए. अब आप पूछेंगे क्यों क्यों बोलना है हमारे को ये, ठीक है, शायद आप नहीं पूछेंगे, लेकिन जो लोग लो फील करते हैं, हम सेशन में अक्सर देखते हैं, बोले क्या हो जाएगा इससे. इससे क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आप बाहर वालों से सुनना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपको वैलिडेट करें, लोग आपको इनकरेज करें, लोग आपको मोटिवेट करें, लोग आपकी तारीफ करें. और जब आपको वो सब बाहर से नहीं मिलता है, तो यू स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड एंड सैड. फिर वही
आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है एंड व्हाट इज द कॉस्ट। तो जब सुबह आवाज आए ना कि क्या कर रहा है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है, फिर भी बोलिए यू आर अमेजिंग, यू आर दिस, यू आर दैट। मैं आपको मेरी एक क्लाइंट का एग्जाम्पल बताती हूँ। She is an HR and she was supposed to organize a big event for the company employees. Okay. She was preparing for this for 3 months. She is from Canada and वहाँ शायद employees के लिए it was a night event and she was supposed to prepare taxi vouchers जो कि वो भूल गई prepare करना. Okay. And at the party was going great. At the party, the manager lashed out her for that one thing. उसका पूरा मूड खराब हो गया. She was so disappointed, so sad. 2 हफ्ते उसके निकल गए उस चीज के अंदर में कि for 99 things that I did right, he could not appreciate me, or for the one thing that didn't go right, he lashed out. Party was amazing. She couldn't celebrate that. In fact, 15 दिन तक she was crying. After 15-16 days, उनका मैनेजर उनको बुलाकर बोलता है, you know, you have done a wonderful job. I'm so proud of you. What is the point? She ruined her day. She couldn't celebrate it. Okay. And जो नेक्स्ट 15 डेज थे वो भी उसके पूरे के पूरे खराब थे, राइट? अगर उसी दिन इफ शी कुड अप्रिशिएट हरसेल्फ, इट्स ओके, आई एम ओनली ह्यूमन, आई कैन मेक मिस्टेक, एंड हो गया, लेकिन इतनी अच्छी, आई हैव ऑर्गेनाइज सच अ ग्रेट इवेंट, सच अ ब्यूटिफुल इवेंट, आई एम अमेजिंग. शी कुड सेलिब्रेट इट, she could appreciate herself, she couldn't do it. और ये हम सबके साथ होता है. हम बाहर वालों से expectations रखते हैं and it's not their responses, it's our own expectations, you know, which disappoints us. So that's the reason in the morning जब आप खड़े होते हैं मिरर के सामने, बोलिए अपने आप को यू आर अमेजिंग. कोई ना कोई तो रीजन आपको मिल ही जाएगा अपने आप को अप्रिशिएट करने का कि वाओ, you have done this and I am so proud of you. एक और चीज आप समझिए, आपने कभी, have you ever seen someone telling the ocean, you are so big, so vast, so deep, so magnificent? No one ever tells the ocean because ocean knows that I am big, I am vast, I am deep, I am magnificent. I don't need to hear it from others, and that's the reason ocean remains calm, right? So आप ocean बनिए. Every day fill yourself up with self-uplifting statements that yes, I am this. फिर देखिए किस हद तक आपका स्ट्रेस कम होता है, द इमोशनल स्ट्रेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अवॉइड टेकिंग थिंग्स पर्सनली. देखिए, अगर ये स्किल आपने डेवलप कर ली ना कि चीजों को पर्सनली मुझे नहीं लेना है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको मेरे क्लाइंट का ही एग्जांपल देती हूँ कि why he could not appreciate her for the 99 things that she did right and the one thing she could not do right, because he himself was stressed. You know, it was not about her. वो खुद इतने स्ट्रेस में भरा हुआ था उस टाइम पे. all that was running in his head was कि इवेंट ठीक से हो जाए. it was not about her. उसको, मैनेजर को शायद दिमाग में भी नहीं होगा कि what he was talking, but that ruined those 15 days of that client of mine, right? तो हर चीज आपको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है. आप जब वर्क प्लेस पे होते हैं, यू सी समटाइम्स, यू नो, पीपल आर रूड, पीपल आर कनिंग, पीपल आर मीन. Maybe it's not about you. They themselves are struggling, you know. उनकी खुद के जीवन में इतना कुछ चल रहा होता है and they don't know how to regulate that. उनको नहीं पता किस तरीके से मैं इससे डील करूं
नहीं पता क्या मुझे करना चाहिए। सो स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली कि उसने मुझे इस तरीके से बोल दिया, क्यों उसने बोला, किस लिए बोला। हो सकता है उसके खुद के लाइफ में ही हिमसेल्फ इज स्ट्रगलिंग। सो स्टॉप टेकिंग थिंग्स personally, and that will help you to a great extent. Next one is, अब मान लीजिए कि रात हो गई, ठीक है, पूरा दिन आपका निकल गया, रात हो गई है, आपको करना क्या है? स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग। जब आप वापस बेड में जा रहे हैं सोने के लिए, स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर डे। ठीक है, आपका दिन आज का कैसा गया? देखिए, आपने अगर हेल्थ चेक रिमाइंडर्स आपके लगाए हैं तो आपको पता है 3 टाइम पे तो मैं कैसा था, मुझे अच्छे से मालूम है मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मेरे इमोशंस क्या थे। एक आपके पास में इंफॉर्मेशन वहां से आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा था उस वक्त पे। मान लीजिए मेरा किसी से उस वक्त आर्ग्यूमेंट हो रहा था, ठीक है, अब उस सीन को अपने दिमाग में प्ले कीजिए। स्टार्ट प्लेइंग दैट सीन इन योर हेड, रिवाइंड दैट सीन एंड अपने आप को ऑप्शंस दीजिए, मैं इस केस में क्या कर सकता था डिफरेंटली कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे, मैं एंग्री नहीं होता, मैं एजिटेटेड नहीं होता। उस सीन को दोबारा से आप रीप्ले कीजिए कि मुझे, हो सकता है मैं उसे सुन सकता था। द मोमेंट ही स्टार्टेड स्पीकिंग, मुझे तुरंत से माई ब्लड स्टार्टेड बॉइलिंग। आप अपने आप को बोल सकते हैं उस टाइम पे, यस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी इंस्टेड ऑफ इंटरप्टिंग, मैं शायद पेशेंटली उसको और सुन सकता था, विच आई डिडंट डू। ऐसे आपको बहुत, मान लीजिए आपकी वाइफ के साथ में आपका आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है, जो हमेशा की बात है, होता है, हम सबके घरों में होता है, दोज हु आर मैरिड, किसी न किसी चीज को लेके होता ही है। क्या मैं कर सकता था उस वक्त? ठीक है, मेरे वर्क का बहुत सारा प्रेशर था मेरे ऊपर में, आई वॉज स्ट्रेस्ड, लेकिन वो भी तो बिजी थी सारे दिन, ठीक है, शी वॉज ऑल्सो स्ट्रेस्ड, शी डिडंट शो, शी डिडंट चेंज हर टोन। मैं इस बात को अच्छे तरीके से भी बोल सकता था। बच्चे के साथ में आपका आर्ग्यूमेंट होता है, यू नो, बच्चा बच्चा शायद पढ़ नहीं रहा है, बच्चा कुछ काम ठीक से नहीं कर रहा और आप चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर में। पता है, ये सबसे बड़ा बच्चों का आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, मालूम है, कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे ये नहीं कर रहे हैं। ये हम जब पेरेंटिंग के सेशंस करते हैं तो ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हमारी कि एक बच्चा जो 13 साल का या 17 साल का या 18 साल का है, उससे हम उसको हम कंपेयर करते हैं हमारी समझ के हिसाब से कि दैट चाइल्ड शुड हैव knowledge and awareness और brain capacity of a 45-year-old और 50-year-old। वो बच्चा कैसे समझ पाएगा क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है? आप कितनी भी कोशिश, देखिए कोशिश मैं हमेशा बोलती हूँ पेरेंट्स को करनी चाहिए, लेकिन तरीका जो हम अपनाते हैं ना, फ्रस्ट्रेट होना, चिल्लाना उसके ऊपर में, इट डजंट वर्क। अब दिमाग में हमारे आता है कि हमारी पेरेंटिंग तो वैसे ही हुई है, हमने यही देखा है, आजकल ये सब बहुत ज्यादा आ गया है, ये हो गया है। देखिए, पहले वाले टाइम में और अभी वाले टाइम में मेजर जो डिफरेंस है, आप वो चीज समझिए, वो है कि हम पहले बहुत कनेक्टेड थे, वी यूज टू स्टे इन जॉइंट फैमिली, ठीक है, तो हमारे अलावा फैमिली में कजिन्स होते थे, दादा दादी होते थे, अंकल आंटी होते थे। बच्चे के पास में अगर हम डांट रहे हैं उसको, तो कुछ
लोग पैम्पर करने वाले होते थे, कुछ लोग समझाने वाले होते थे, कुछ उसकी बराबर की एज के होते थे जो आप आपस में अपना दर्द बांट सकते हैं कि यू नो इवन माय फादर इज लाइक दैट और समथिंग लाइक दैट। अभी वो नहीं है। जो हमारा पहले नेबरहुड हुआ करता था वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करती थी, राइट? सो पहले स्ट्रेस नहीं हुआ करता था क्योंकि हम बात कर सकते थे इस बारे में। अभी वो टाइम नहीं है। तो अभी का जो टाइम है, अभी के टाइम की जो पेरेंटिंग है, इट नीड्स टू बी डिफरेंट देन व्हाट यूज्ड टू बी इन आवर ओल्ड टाइम्स, या हमारी जो पेरेंटिंग है उससे डिफरेंट है। और देखिए, अगर आपका कम्युनिकेशन आपके बच्चे के साथ में, आपका बॉन्ड आपके बच्चे के साथ में सही है, हो सकता है वो एकेडमिकली अभी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। ट्रस्ट मी, अगर ये बॉन्ड सही है वो आएगा आपके पास में, धीरे धीरे चीजें रजिस्टर होगी, वो किसी भी गलत कंपनी में नहीं जाएगा। ही विल फील कंफर्टेबल कमिंग टू यू, शेयरिंग थिंग्स विथ यू, एंड दिस विल हेल्प यू डेवलप दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो अगर आपके बच्चे के साथ में एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि अक्सर जब बच्चे बात करते हैं, बच्चों का बहुत हीटेड टॉपिक होता है आजकल, बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, हम चुप करवा देते हैं उसको ना, कि नहीं बोलना है, तुमको समझ नहीं है। बच्चों को बोलने दीजिए उनको। अगर आपको लगता है बिल्कुल बेतुका बोल रहा है, कुछ भी उसमें समझ नहीं है, सेंस नहीं है, सिर्फ सुनिए उसकी बात। लेट दैट पर्सन स्पीक, लिसन टू दैट पर्सन, यू नो। एक तो उसके अंदर ये सेंस डेवलप होगा कि आई एम बीइंग हर्ड, मुझे कोई सुन रहा है, यू नो, आई एम बीइंग वैल्यूड। तो ये, और दूसरी चीज आएगी बोलने का कॉन्फिडेंस। आप बोलने के पहले उसको चुप करवा देते हैं और फिर उसके बाद में बोलते हैं मेरा बच्चा सुनता नहीं है। आपने सुना अपने बच्चे को? हम सुनते हैं अपने बच्चे को। बच्चे जो देख रहे हैं बच्चे वही सुनेंगे। अगर आप बैठकर अपने बच्चे को सुन रहे हैं, आपका बच्चा भी आपको बैठकर सुनेगा, आपकी बात सुनेगा। हो सकता है इमीडिएट उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, तो समझने की कोशिश कीजिए कि उसके स्कूल में क्या चल रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल में क्या चल रहा है। ट्रस्ट मी, दिस टीनेज इज नॉट इजी, दे आर हैविंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। अगर आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है, कनेक्ट हो पा रहा है, ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो जब आप रात को बैठकर रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक बार बोलिए अपने आप को, मैं क्या डिफरेंट कर सकता था विच would help me to change my reaction or my response। ठीक है? देखिए, फाइट और फ्लाइट मोड तो बच्चे को भी अगर आप डांट रहे हैं तो उस वक्त भी एक्टिवेट हो रहा है। इट्स नॉट कि ये मेरी फैमिली है तो मैं इनके ऊपर नाराज हो रहा हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस वक्त भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि गुस्सा आपको रियल वाला आ रहा है। ठीक है? फ्रस्ट्रेशन आपको रियल वाली आ रही है, तो ये तो उस वक्त भी आपका हो रहा है, राइट? सो ऑलवेज रिफ्लेक्ट, रिवाइंड, रीप्ले, क्या क्या मैं चेंजेस कर सकता था। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सन, यू आर टॉकिंग टू योर वाइफ, यू आर एट द मीटिंग, you would be able to see that you are able to control your reactions। लेकिन ये भी सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। और इसमें कुछ आपको बाहर नहीं करना, थॉट्स आपके दिमाग में ही चल रहे हैं, आपको एक्टिवली अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, राइट? द नेक्स्ट वन इज ग्रैटिट्यूड। अच्छा, ग्रैटिट्यूड के पहले मैं एक चीज आपको और बताती हूँ, फिर मैं आऊंगी ग्रैटिट्यूड के ऊपर में। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये वाला, और कैसे ये काम करता है ये मैं आपको बताती हूँ। फॉरगिवनेस पे जब बात आती है, आप एक पेपर लीजिए और मैं Forget and forgive. फॉरगेट एंड फॉरगिव, यस। लेकिन इसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि फॉरगेट एंड फॉरगिव में भी एक कैच होता है। हम कहने के लिए कहते हैं कि इफ यू फॉरगेट, यू फॉरगिव दैट पर्सन, लेकिन ये आप एक बार टेस्ट कीजिएगा
कि जब आपने ये बात बोली कि आई फॉरगॉट एंड आई फॉरगिव दैट पर्सन, कुछ दिनों के बाद में जब आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में या किसी अपने इंसान के साथ में आप शेयर कर रहे हैं वही वाकया, हाउ आर यू फीलिंग इन योर बॉडी? आपको तब भी गुस्सा आएगा अगर उस वक्त आपको गुस्सा आएगा, आपको तब भी दुख होगा अगर ओरिजिनली आपने सैडनेस एक्सपीरियंस किया था या हर्ट या पेन जो भी है, आपने फॉरगेट तो कर दिया लेकिन बॉडी नहीं भूली उस चीज को। दैट memory is, that emotional charge is still activated in your body. आप आज नहीं, अगर आपने उस चीज के ऊपर में काम नहीं किया, 15 साल बाद भी अगर आप उस चीज के बारे में बात करेंगे ना, आपको फिर भी गुस्सा आएगा। माई ब्लड स्टिल बॉइल्स। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे सेशंस में 65 ईयर्स 70 ईयर्स के लोग होते हैं जो अपने सेशंस पे काम करते हैं, जो इंसिडेंट हुआ है when they were 20 ईयर्स, 20 साल के जब वो थे तब की बात है। आज भी जब वो बात करते हैं उस चीज के बारे में, या तो उनको गुस्सा आता है या दे आर क्राइंग, यू नो। सो आप सोचिए कितना कुछ आप भर कर अपनी बॉडी के अंदर में चल रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट राइटिंग डाउन सम की इवेंट्स जो कि ऑफन आपको इरिटेट करते हैं। कि मान लीजिए किसी की वजह से आपको लॉस हुआ, या ऑफिस में ही कोई आपका इंसिडेंट हुआ, जो भी चीज आपकी है आप किसी चीज के ऊपर में लिखिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिलेटेड टू अ पर्सन एंड देन यू से आई चूज टू फॉरगिव दिस पर्सन। अंदर से आवाज आएगी कि जो इस इंसान ने काम किया है ना, आई कैन नेवर फॉरगिव दैट पर्सन, हाउ डेयर, उसने कैसे किया ये वो। आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अपने आप को बोलना है। I am choosing to forgive that person not because that person deserves my forgiveness. I am choosing to forgive this person because I deserve peace, calm, health, and wealth. अगर आप सही हैं, आपकी हेल्थ सही है, तो वेल्थ भी जनरेट हो जाएगा। फॉरगिवनेस इज समथिंग दैट इज, देखिए ये भी स्किल है जो आपको डेवलप करनी है, एंड इट इज अनदर गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे। आई एम नॉट चूजिंग टू फॉरगिव दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन डिजर्व्स माय फॉरगिवनेस। आई एम चूजिंग टू फॉरगिव दैट पर्सन बिकॉज आई डिजर्व पीस, काम एंड हेल्थ। ये आप बोलिए और हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराइए कि इट्स ओके। ना आप पीछे जाकर उस चीज को बदल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसमें जाके, लेकिन ये जो इमोशनल चार्ज, ये जो इमोशनल बैगेजेस आप लेकर चल रहे हैं, इसको आप रिलीज कर सकते हैं। एंड जब आप ये रिलीज करते हैं तो यू आर सेविंग योर हेल्थ एंड योर वेल्थ, राइट। तो ये आप जरूर बचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रैटिट्यूड। सबको पता है हमें कि ग्रैटिट्यूड, वी शुड बी ग्रेटफुल, लेकिन आपको पता है जब हम लो फील करते हैं, सैड फील करते हैं, डीमोटिवेटेड डिस्करेज्ड फील करते हैं, we can't even find a single reason to be grateful for, ठीक है। ग्रैटिट्यूड अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो सिंपल चीजों से स्टार्ट कीजिए। अपने आसपास ही देखिए, अगर आप रात को बेड में हैं, द बेड दैट यू आर इन, भगवान ने पूरी बॉडी आपकी सही सलामत रखी हुई है, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आस पास देखिए, आपको वाइफ दिख जाएगी, आपको हस्बैंड दिख जाएंगे, आपको बच्चे दिख जाएंगे। बी ग्रेटफुल फॉर द फैमिली। देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट ब्लेस्ड इनफ टू हैव फैमिली। बहुत सारे, द फूड दैट इज देयर ऑन टेबल। हाउ ग्रैटिट्यूड हेल्प्स
in reducing stress and anxiety. Once you start practicing gratitude, your focus shift from the feeling of lack to the feeling of abundance. आपको समझ में आता है कि जब आप परेशान हैं, जब आप दुखी हैं, तो सब कुछ लगता है कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लाइफ के अंदर में कुछ भी अच्छा नहीं है. बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, तो जैसे जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होते हैं, व्हेन यू पे ग्रैटिट्यूड, आपके हैप्पी हार्मोन्स सच एज डोपामिन आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, विच हेल्प्स यू काम डाउन, रिलैक्स. So that's the reason you should pay gratitude every single day. एक और चीज है positive affirmations that you can say every day about yourself. Positive affirmations होती है कि आप 5 statements अपने लिए तैयार कर लीजिए, कोई भी 5 statements that I am strong, I am resilient, all is well in my world, I am worthy of the best life. जो भी आपको समझ में आता है, 5 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आप अपने लिए तैयार कीजिए एंड कीप चैंटिंग दोज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑल द टाइम लाइक मंत्रा. क्यों ये करना है? क्योंकि आपका ब्रेन कभी भी खाली नहीं रहता है, कभी भी नहीं. समटाइम्स हो सकता है कि आपको रीजन मिले हुए हैं टू फील नेगेटिव, लेकिन जिस वक्त कोई रीजन नहीं है ना, उस वक्त भी अगर आप इस नेगेटिव लूप में हैं जहां यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड एंड एंशियस एंड लो, तो आपके दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव सबकॉन्शियसली चलते जा रहा है. टू म्यूट दैट वॉइस, आप अपने आप को बोलना शुरू कीजिए, आई एम इनफ, आई एम वर्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रेजिलियंट, all is well in my world, I am loved. जो आपके मन में आए, जो आपकी एनर्जी को चेंज करे, एंड वर्ड्स हैव एनर्जी. आप एक बार अपने लिए बोलिए कि you are good for nothing, you've got nothing that it takes, how dare you think that you can do this. ये सब चीजें आप अपने आप को बोलिए और एक बार अपनी एनर्जी चेंज चेक करके देखिए कि कैसा लगता है. तो ये आप वर्बली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें, रिमेंबर दैट एग्जाम्पल ऑफ माई क्लाइंट फ्रॉम कैनेडा हु वॉज what she did, she was cribbing that how could I forget that, how could I not make that taxi vouchers, it's okay, you did such a wonderful job. लेकिन नहीं होता. So until and unless we are aware, हम नहीं कर पाएंगे. So these are the practices that we need to develop. और कुछ इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है. स्ट्रेस एंड एंजाइटी सारा आपका ब्रेन का खेल है, आपको ब्रेन से ही डील करना है. और एक चीज मैं आपको बताऊं, हमेशा कोई भी चेंज जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ में, कीप इट सिंपल, कीप इट इजी, कीप इट स्मूथ. वाई? देखिए, आप जब चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने बोला, अरे यू आर फीलिंग सो लो, सो डिप्रेस्ड, दिस 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 दिस, यू स्टार्ट योगा फ्रॉम टुमारो, विच इज अगेन आई एम टेलिंग यू एन अमेजिंग एडवाइस. उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है. एंड प्रॉब्लम क्या है कि जब आप योगा सेशन करेंगे, आपको मिनिमम 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स लगेंगे. आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड नहीं है, ब्रेन के लिए वो टॉर्चर है. लेकिन अगर आप छोटे सिंपल चीजें रखेंगे ना, एंड योर ब्रेन इज, या आप गूगल करके देख लीजिएगा, योर ब्रेन इज बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड टू पुश यू टुवर्ड्स pleasure,
and keep you away from pain. योगा कोई पेन नहीं है, लेकिन आपके लिए अभी पेन है क्योंकि यू आर नॉट अकस्टम्ड. जिम जाना पेन नहीं है, हेल्दी ईटिंग पेन नहीं है, लेकिन होता क्या है, जिस दिन हमको एडवाइस मिलती है उसके नेक्स्ट डे हम 360 डिग्री पूरा चेंज होना चाहते हैं. तो वो आपके ब्रेन के लिए टॉर्चर है. आप हफ्ते भर डाइट भी, मैक्सिमम डाइट्स इसीलिए फॉलो होती है, आपने ना अपने ब्रेन को रेडी किया, ना आपने अपनी बॉडी को रेडी किया, एंड आप बिल्कुल से एकदम अचानक से बोल दिया ये करना है. हो सकता है कुछ दिन मोटिवेटेड आप रहें, आप कर लेंगे वो वाली चीज, बट मोटिवेशन डजंट लास्ट फॉर लॉन्ग. यू नीड टू डेवलप हैबिट्स फॉर दैट, राइट, फॉर एनी चेंज टू लास्ट. तो अगर आपको लास्टिंग चेंज अपने अंदर में चाहिए, start making things easy and smooth. अगर चेंज इजी रहेगा, सिंपल रहेगा, आप आराम से उस चीज को इनकलकेट कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे. सो मेक योर ट्रांजिशन वेरी इजी, वेरी स्मूथ. नाउ द थिंग इज कि हैविंग दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ दिस कैन चेंज यू. देखिए, जब आप अपने इमोशन से अवेयर होते हैं, यू बिकम मोर calm, relaxed. You start practicing active listening. You become empathetic. आप जब अपने इमोशन से अवेयर होते हैं, आपको पता होता है लोगों की बातें आपको कितना इम्पैक्ट कर रही है. आप भी जब लोगों से बात करते हैं ना, you also consider how much my tone, my tonality, my words can impact the other child, right? इमोशनल अवेयरनेस आपके अंदर में जो चेंजेस लाती है, दैट डजंट गो अननोटिस्ड. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, विच इज फ्रॉम माय फैमिली. माय डॉटर इज इन कॉलेज 3rd year. माय सन इज इन 8th grade. There is a gap of 7-8 years. The other day, both of them were having a conversation. My son is asking my daughter that, Didi, Recording stopped. Recording in progress. okay. My son asked that, Didi, earlier you used to be so mean to me, so rude to me. And now you are so nice, you're so loving, you're so caring. So was I so bad earlier? It was such an heartwarming and heart melting conversation. So I just couldn't stop myself from hearing both of them. My daughter said, no, it wasn't about you. It was about me. When you were young, I was in 8th, 9th grade. I was going through a lot at my school. I was so frustrated. Mama, Papa were also not able to understand me. I was so angry. And there was no one to share, nowhere to vent. You were the only one, you know. I mean, you were the easy target. I could vent out my frustration, my anger on you. It was never about you. My daughter now, she is grown up, she understands, right? So there are changes. She could process her emotions, she could work on herself. She is emotionally, to some extent, she is emotionally aware. And she, even if my son is annoying and all that, she is able to let go. But ye change aaya kahan se? When she herself resolved her emotions, resolved her pain, that's when she is able to be kind. तो जब आप अपने इमोशंस पर काम करते हैं, you automatically become empathetic. जब आप वर्क प्लेस पे होते हैं, आप देखिए मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ओपिनियन. हम सुनते नहीं है, उसके पहले हमको रिस्पॉन्ड करना होता है, राइट? You become an active listener.
even when the presentation or meeting is going on, you can see that some emotions are rising in your body. Okay. And you want to react. But if you are connected to your bodily sensation, जो हमने पहले बात की थी, if you understand your emotions, you can control yourself. You can wait for your time rather, right? And once the person stops speaking or when you get your chance, आप देखेंगे you communicate differently, effectively. Why? Because you are not agitated, you are calm. And at workplace, if you practice this, you can diffuse a lot of tension, lot of stress. Work harmony is created. आप you look forward to going to that place. You work as a team, not as a competitor. कि इसको नीचे करना है, उसको नीचे करना है. And what we get by that, you tell me. उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उस टाइम टेंशन होती है, and then later on we ruminate, like we keep thinking about that, and that again creates a lot of stress. So having emotional intelligence can help you reduce, avoid lot of tension. It makes you an effective speaker. Communicate things in a more effective way, better way. देखिए, मैं फिर आप वापस यही चीज बोलती हूँ आपको कि having an emotional intelligence doesn't mean कि आपकी जिंदगी से सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, you will become a saint or something like that. नहीं, ना हमको वो चीज करनी है, बिकॉज स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स दोनों की दोनों चीजें हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, इट्स नेसेसरी, वी नीड दैट. बट द emotional stress or stress that is being caused by emotions, you can regulate that stress to a great extent. एंड अगर आप वो रेगुलेट कर पाते हैं तो आप बहुत हद तक you will feel in control, you will be able to avoid or lot of disease and life will look beautiful. एक चीज मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगी, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, सफर के दौरान अगर हमारी कार के आगे घना कोहरा छा जाए और आगे कुछ भी ना दिखाई दे, इसका मतलब ये नहीं होता कि आगे रास्ता नहीं है. उसी तरह जब हम जीवन में चारों तरफ प्रॉब्लम से घिर जाएं, समस्याओं से घिर जाएं और कोई हल ना नजर आए, इसका मतलब ये नहीं होता कि हल नहीं है. आगे रास्ता भी है और हल भी. हम कुछ देर रुक कर मौसम के बदलने का इंतजार कर सकते हैं, या फिर अपनी विंडो को क्लीन कर, हेडलाइट को ऑन कर धीरे धीरे सफर में आगे बढ़ सकते हैं. विश्वास मन में ये होना चाहिए कि आगे रास्ता भी है और हल भी. इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली आपके साथ में यही काम करती है. व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर इमोशंस, आप खुद अपने आप को समझा सकते हैं, आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं इन द मोस्ट डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है आप खुद से नहीं ये चीज कर सकते हैं, please don't hesitate to seek out professional help. There are therapists, there are coaches, there are mental health professionals. फ्रेंड्स से आप बात कीजिए, रिलेटिव से बात कीजिए, पर जो भी आपके अंदर का दर्द है, प्रॉब्लम है, समस्या है, उसे बताइए, उसे रिजॉल्व कीजिए. On this note, I would like to sign out. If you have any questions, I am ready to take questions now.
Over to you, Mr. Raman. Yeah, ma'am, I don't think so. There is any question. So if anybody having a question, so please just to write it down so that we can take to our speaker. Let's wait, ma'am, for another 1 minute. Sure, Yeah. sure. So if anybody is having a question, so please just chat, put it on the chat so that we can take it away with the our speaker. Sambhiji, do you find any question in your WhatsApp group? Okay, so this question, I'm getting a question, I can see it, that what is the cause of stress and anxiety? Why is it increasing in recent time? Does it have any impact on life disease like diabetes, blood pressure, etc.? देखिए ये सारी की सारी चीजें, all these things we have covered in this session. Yes, it does impact our life. I mean, I don't say this is the only reason for developing diabetes, but yes, it plays a significant role. And the reason is that we are not able to regulate our stress and anxiety. So, emotional intelligence, when you are emotionally aware aware of your emotions, you can reduce that stress by practicing the tools that I have explained, all those techniques. Do all that, and you will definitely be able to regulate your stress and keep disease at bay. There is a long question I can see about children don't pay. Okay, so somebody is asking how we can, like, when children don't listen to us, what can I do? Like, if they are not waking up in the morning, this is related to parenting, and I empathize with parent. Parenting in this time is not easy. It is very, very challenging, right? I absolutely acknowledge that. But at the same time, trust me, it is more challenging for the younger ones. Like I said about my daughter, she was so lonely. See, being a coach, I was not aware what was going on, in her life until and unless she shared that what was happening. So मैं मानती हूँ ये वाली चीज, लेकिन ये एक phase है. Now she is 20-year-old and she understands a lot many things. She understands her responsibilities. हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है, हम उनको एकदम आइडियल चाइल्ड बनाना चाहते हैं कि, एंड इन द प्रोसेस हम इतना बड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं हमारे बीच में और उनके बीच में. दे डोंट कम टू अस, दे टर्न टू देयर फ्रेंड्स फॉर सीकिंग एडवाइस. अब आप सोचिए जो उनके बराबर के लोग हैं, उनका क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, what kind of advice they might be getting there, right? So here I would suggest parents that be patient, just bear with it. Even if they don't listen, just keep telling them what is right, what is wrong. That is all we can do. There would come a time they would realize, they would understand, they would change. But in the process, आपका बच्चा mentally and emotionally strong होना चाहिए. उसकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दिस टाइम
teenagers are the one who are struggling the most. ना स्कूल पे लोग समझ पाते हैं, ना घर पे पेरेंट्स समझ पाते हैं. सो दिस इज अ जनरेशन गैप. हो सकता है हमारे पेरेंट्स को भी लगा होगा. हमको लगता है हम बहुत अच्छे बच्चे थे. Somebody should ask our parents, in their times, they were mad all the time, right? But like I said, we had siblings, we had cousins, we had neighborhood like which was like extended family, right? Grew up in joint families, so it was like that, right? So all I can suggest is be patient, be kind. Thank you, ma'am. So I think we are done with the questions, right? Yeah, I think so. So They're asking about simple tricks method to manage stress level. We have covered all of this, I think, in the session. right. And yeah. So should we wait for the questions, further questions? Another 1 minute we can wait, then, Sure. then we can move forward. Sure. Me- Okay, how can I Meanwhile, make- Yes, sir. ma'am, it was nice session. Thank Uh, you. I attended such kind of a session with the ICA for the very first time. It was very, it's a need of an hour for all of us. And we urge and request and hope that we organize on behalf of the Haldwani branch committee. We organize such seminars for our branch members as well. We are around 200 plus members here. So it's very much needed for all our members as well. So I would request and hope that we as a committee and all the committees present at the ICI, and it was a wonderful session, and we would love to have such sessions for our members as well. Sure, Mr. Saransh. Thank you so much for the feedback. Yeah. So, ma'am, now we move to the conclusion of this session for the vote of thanks. Yeah. So it has been such an honor to be a part of this wonderful webcast on emotional intelligence skills, regulate stress and anxiety, organized by the Professional Skills Enrichment Committee, ICI. I, on behalf of the Professional Skills Enrichment Committee, ICI, would like to extend our heartfelt gratitude to our speaker, Ms. Namita Tibrewal, for her enlightening session, and CA Anuj Goyal, Chairman, Professional Skills Enrichment Committee, ICAI. Sincere thanks to the event enablers from the Haldwani branch of CIRC of ICAI who enabled the webcast throughout. A wide round of applause and thanks to the organizers, Professional Skills Enrichment Committee, ICI, our today's speaker, Ms. Namita Tibrewal, and other stakeholders made the webcast a memorable one. Finally, we would like to thank all of you present here and helping us make this webcast a grand success. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Yes, Ashok ji.